Hello students. So I think you are very well and healthy at your home. Okay, in a corona जो पेंडेमिक चल रहा है. So behalf of Silver Bell School CBSE Jagana, myself I am Dr. Atul Kumar H. Gami, very warmly welcomes to all the students of Silver Bells. Okay, so you better to be remain fit and better to be study. So in online classes I am warmly welcomes to all the students of standard 11. So subject is already you are know, the subject is biology. Okay, and we already started the unit number 1, diversity of living organism. In that we already taxonomical जो unit है उसमें हमने already first chapter we started the living world. In that in previous lecture number 1.1 we study about the different characteristics of living organism which made the living organism can be living. Okay, so some portion is to be remaining of that particular lecture that today I am starting, and next the lecture number 1.2, in that we also cover the diversity in the living world, and we understand how to be the organism can be studied in a taxonomy, in a biology. So ये दो पॉइंट हम आज ले रहे हैं. Okay, let's start with one to be remaining point. Up to date I am completed over there. I am giving to explanation about entropy also. Now let's to be remain one more thing. In what is living we can say, or the definition of living can be given how. लिविंग की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे. दो सम पोर्शन इज टू बी गिवन. नोबडी कैन बी इमॉर्टल. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन विद एनवायरनमेंट, एडेप्टेशन दे हैविंग, and also the death are the nothing but the different type of characteristic to be found in a living organism. ये सारी different characteristics है जो living organism में पाई जाती हैं, उसी को living कहते हैं. तो for example बुक में जो एक point दिया हुआ है, let's I will explaining about that, then after I will define what is living, जिसकी कोई definition generally बुक में नहीं दी है, but I am giving you a complete definition of living. Before that I can say each and every in higher levels the complexity is increased. हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या इंक्रीज होता है? कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है. तो दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट प्रोवाइड अकाउंट कि भाई ऑर्गन है तो ऑर्गन की प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड रहती है? द ऑर्गन की प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशन ऑफ nothing but tissue, and tissue's property are depend on cells interactions and cell interaction with their organelle interaction. तो जैसे कि ऑर्गन कैसे काम करता है उसका डिपेंडेंस किसकी इंटरएक्शंस और इंटरेक्शंस के बीच में होता है? टिश्यू की प्रॉपर्टीज और टिश्यू का स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड रहता है? सेल. और सेल कैसे फंक्शनिंग करेगा? दैट इज डिपेंड ऑन ऑर्गेनल. सो सेम वे आई विल कैन ऑल्सो गिविंग द डेफिनेशन ऑफ लिविंग. सो व्हाट इज कॉल्ड लिविंग? लेट्स वी अंडरस्टैंड द लिविंग. तो लिविंग को हम डिफाइन कर सकते हैं वेरी शॉर्टली कि लिविंग क्या होता है. तो लिविंग किसको कहते हैं? लिविंग बीइंग्स the organism in terms, this is the word is living only. ये वर्ड लिविंग के लिए यूज होता है. ऑर्गेनिज्म और दोज सीधा यही से स्टार्ट करते हैं. दोज हैज कैरेक्टरिस्टिक्स
and they birth and relate with their environment. So these all are called nothing but living organism. या तो shortly कहे those who has a life, तो living की दूसरी डेफिनेशन में रिसाइड करता हूँ, those who having the life and interact or relate with their environment, तो such a things are called living organism और such called the living organism, कि जिसकी लाइफ होती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और अपने एनवायरनमेंट के प्रति वो रिएक्शन देता है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, लिविंग. तो लिविंग की शॉर्ट डेफिनेशन क्या हुई, दोज हु हैव लाइफ एंड रिलेट विद देयर एनवायरनमेंट, सो सच कॉल्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द another aspect in lecture number 1.2. let's we understand about diversity in living world. तो पहले तो वर्ड आपके लिए नया है क्योंकि यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, तो 11 के लिए डाइवर्सिटी वर्ड ऐसा है कि बहुत ही नया वर्ड है आपके लिए. तो डाइवर्सिटी, लेकिन इतने कुछ चिंता करने की बात नहीं है. डाइवर्सिटी हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्सिटी इज नथिंग बट द डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स और इन ऑर्गेनिज्म विच हैविंग देयर लाइफ स्पैन, देयर color, their behavior and the different ways. मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस टूगेदर वी कैन से डाइवर्सिटी. ओके, तो डाइवर्सिटी इतना बड़ी भी कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपके लिए नहीं है. डाइवर्सिटी जब भी दिमाग में आए, द वेरिएशन अमोंग द ऑल द ऑर्गेनिज्म, और इट इंक्लूड ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रोब्स. तो ये सारी क्या हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी हो जाती है. अब बायोडाइवर्सिटी हुई है तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है वो तो नहीं पढ़ेंगे, वो एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे. बट हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन स्टडीड, व्हाट बेस वी कैन अंडरस्टैंड इट. सो दिस बेस इज नथिंग बट हियर इट इज गिवन. ओके, तो किस बेस पर स्टडी करते हैं, तो हम पहले अंडरस्टैंड करना चाहेंगे. नंबर 1 है कि पहले तो ये समझ लो कि ग्लोब में एस्टिमेटेड बायोडाइवर्सिटी कितनी है. एस्टिमेटेड मतलब कि जिसके पास कोई इंसान पहुंचा नहीं, कोई इंसान ने उसको स्टडी नहीं किया या इंसान वहां तक पहुंचा नहीं. बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो स्टिल अवेलेबल है इन द वर्ल्ड, लेकिन हम अभी तक उसका स्टडी या तो नाम भी नहीं जानते. तो ऐसी एस्टिमेटेड स्पीसीज आर इज अराउंड 5 मिलियन टू 5 करोड़ समझ लो, या तो 50 करोड़ भी हो सकती है, दैट डिपेंड. बट साइंटिफिक स्टडी शोज दैट इज अराउंड 5 मिलियन. साइंटिफिक स्टडी कहता है कि ये 7 मिलियन है, ऐसा रॉबर्ट ने स्टडी किया था. तो उसका मतलब ये हुआ कि वी जस्ट डिस्क्राइब 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज. अभी हम जो जानते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट है, जो टैक्सोनॉमिस्ट है, जिन्होंने कितने नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टिल वी आर रिकॉग्नाइज एंड नोइंग, ओनली 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख ही जो ऑर्गेनिज्म है, बोथ इंक्लूडेड प्लांट एंड एनिमल्स और एनी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ. इसमें जस्ट हमने इसका 10% भी नहीं जाना है. तो उसका मतलब कि 90% एंड मोर बायोडाइवर्सिटी स्टिल वी आर अननोन. ओके, सो फॉर स्टडी, तो स्टडी के लिए जो तरीका है वही पुराना है, स्लो प्रोसेस है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट. तो हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं, तो देयर आर सेवरल नोब्स, बेस्ड ऑन दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी. सो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट. द फर्स्ट वन इज nomenclature. We already know the all organism having their local names. For example, I will take one example to you. मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा. एक एग्जाम्पल आपके लिए है कि भाई मैंगो ट्री है, तो मैंगो इज इंग्लिश वर्ड. ओके, मैंगो इंडिया में ही पाई जाती है, दैट यू ऑल नो, लेकिन उसके भी नाम अलग अलग है. आम का पेड़ हिंदी,
गुजराती में कहेंगे आंबो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं क्योंकि वी आर हैविंग द रीच ऑफ लैंग्वेजेस। लेकिन उसका एक नाम जो वर्ल्ड में हर जगह पे बायोलॉजिकल नाम होगा, जिसको प्लांट है तो उसको बॉटनिकल नेम कहते हैं, इफ एनिमल है तो उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड, एनिमल होगा तो उसको कहेंगे हम जूलॉजिकल नेम। ओके, तो बॉटनिकल नेम क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम रहता है, स्टैंडर्ड, बस यही नाम होगा। आप बायोलॉजी में कहीं पे भी स्टडी करें, गूगल सर्च करें या कहीं पे भी करें, आप ये नाम डालेंगे तो हमेशा वही चीज़ मिलेगी, वरना आप कुछ भी नाम दे लो तो कुछ नया निकल के आएगा। बट वाइल यू, एक स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम होता है इन बायोलॉजी एंड दैट इज कॉल्ड द नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर इज द गिविंग द नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका is a botanical name of each and every way of मैंगो प्लांट। तो मैंगो प्लांट का मैंजीफेरा इंडिका नाम है, तो वो पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड नाम है, एक ही नाम रहेगा, बायोलॉजिकल नाम है, बॉटनिकल नाम है, वो उसका एक ही रहेगा। तो जनरली टू गिविंग द नेम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइवर्सिटी और द स्पीसीज, द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सेम standard, only one same name, same standard name all over the world, एक ही सेम नाम, तो उसको क्या कहते हैं, that method is called naming. But you are not giving the naming to all organisms without understanding. कोई भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करे बिना तो उसका हम नामकरण दे सकते नहीं है। ओके, तो नामकरण के लिए व्हाट इज दैट, आइडेंटिफिकेशन इज देयर। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ साइंटिफिक स्टडी एंड the scientific explanation or the organism can scientifically described or correctly described according to the law of taxonomy, that is called identification. Identification ये चीज़ है कि आइडेंटिफाई फर्स्ट होता है, उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या दिया जाता है, नाम, जिसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन और कुछ नहीं, एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टू वी कैन describe the organism in a correct way or in a scientific manner. ओके, तो इसके लिए दो संस्थान जनरली होते हैं जो ये देखते हैं। फॉर प्लांट दिस इज कॉल्ड ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो प्लांट स्टडी को बॉटनी कहते हैं। तो प्लांट की सारी देख रेख कौन करता है, सारे क्लासिफिकेशन का जो हेड सेंटर है, नाम देना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, स्टडी करना है, डिस्क्राइब करना है, और जो लॉज होते हैं उसके नामकरण के, वो किसके थ्रू होते हैं, ICBN। आपने कोई भी नई स्पीसीज ढूंढी तो आपको उसका नामकरण लेना है, डिस्क्रिप्शन करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्या करना पड़ेगा, ICBN फॉर प्लांट्स। वाइल एनिमल्स के लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो एनिमल्स के नामकरण करता है। और दिस nomenclature is based on the binomial nomenclature method and that is given by Linnaeus. Carolus Linnaeus is also known as the father of taxonomy. He is known as the father of taxonomy, which are first describes or give the two naming method, यानी मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे, पहला नाम जीनस होगा, दूसरा नाम स्पीसीज नेम होगा। ऐसी जो पद्धति है नाम देने की, वो सबसे पहले किसने दी है, कैरोलस लिनियस ने दी, और उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जाना जाता है। एंड दे आर ऑल्सो क्लासीफाई प्लांट बेस्ड ऑन their reproductive characteristic, based on sexual reproduction. तो प्लांट को 24 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया था, और उनके थ्रू ऐसा कहा जाता है कि भी हर ऑर्गेनिज्म का, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज 2 नेम्स। तो इसको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। सो लेट्स वी अंडरस्टैंड द बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर एंड इट्स लॉ। तो नंबर 1 क्या कहता है, द नेमिंग शुड बी इन अ नेमिंग शुड बी, नेमिंग किस, इन अ लैटिन,
क्योंकि लैंग्वेज ग्रीस की क्या है, ग्रीस की जो लैंग्वेज है वो लैटिन है, तो नेमिंग हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही होंगे। कौन सी लैंग्वेज में होंगे? लैटिन लैंग्वेज। कोई भी आप नाम देखो, फॉर मैंगो, तो मैंगो नहीं कह सकते थे, वर्ड क्या है? मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। ये कौन सा लैंग्वेज है? लैटिन। नंबर 2, एंड टू शो लैटिन हमेशा प्रिंटेड कैसे होता है? प्रिंटेड एज इटालिक पैटर्न। आप वर्ड में जाओ तो इटलिक पैटर्न में हमेशा नाम लिखते हैं, जैसे इटलिक पैटर्न आप करो वैसे ही जब प्रिंट करते हैं, प्रिंटेड में हमेशा इटलिक पैटर्न यूज होता है टू शो द लैटिन लैंग्वेज। बट वाइल यू राइटिंग द नेम यू मस्ट बी राइट अंडरलाइन, हमेशा अंडरलाइन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, द फर्स्ट नेम ऑलवेज बीन, फर्स्ट नेम क्या आएगा? जीनस आएगा, फर्स्ट हमेशा जीनस आएगा, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल। मैं यहां पर मकाई का नाम दे रहा हूं कॉर्न, तो कॉर्न में सपोज उसका नाम क्या है? जिया, दिस इज नथिंग बट जीनस नेम। ये एग्जाम्पल मैं साइड में रखता हूं, जिया, दिस इज कॉल्ड जीनस। मैं यहां लिख रहा हूं तो जेड पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ऑल अदर लेटर्स आर इन स्मॉल। द फर्स्ट नेम इज जीनस, सेकंड नेम इज स्पीसीज। The first letter is capital and other are small. Other alphabets are small. तो सेकंड नेम, पहला नाम ये जीनस आ गया, जिया, मेज। तो देखो मैं लिख रहा हूं तो मैंने क्या किया? अंडरलाइन किया। प्रिंटेड करना है तो कैसे करेंगे? इटलिक पैटर्न में। तो हमेशा नेमिंग शुड बी इन अ लैटिन लैंग्वेज and printed as italic, or while you are writing then you are making the underline. First name always been genus, second name always been species. So for example Gia is a genus and maize is a species name. Okay, now third law, उसके बाद क्या आएगा? The author name, author or scientist who described it, but in several cases the subspecies name come. कि जनरली ऐसे तो जीनस एंड स्पीसीज में ऑथर का नेम, फॉर एग्जांपल लीनियस, तो लीनियस क्या क्या आ जाएगा? एल। तो कि पहला नाम जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज और तीसरा क्या होता है? ऑथर्स नेम होता है। इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करते, ओके। और मे भी समहाउ करते भी, ऐसा कुछ नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि जीनस स्पीसीज, जीनस आ गई, स्पीसीज आ गई, लेकिन सेवरल स्पीसीज में सब स्पीसीज होती है। फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस, सेपियंस, तो होमो जीनस है, सेपियंस स्पीसीज है और सेपियंस सब स्पीसीज है। दिस इज द नेम ऑफ मॉडर्न मैन एंड दिस इज द नेम ऑफ कॉर्न। तो लास्ट में कॉमन नाम या तो जो लोकल प्रचलित नाम है वो भी लिखने का रिवाज है। तो दिस इज द रूल्स टू गिविंग द नेम्स इन अ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल का मतलब होता है दो नाम, पहला जीनस का नाम और दूसरा क्या होता है? स्पीसीज का नाम। यू गो थ्रू द ऑल द पॉइंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। मैंने सिंपल करने के लिए ये लिखा हुआ है। सो नाउ इसके बाद क्या आता है? सो वी कैन प्रिक्योर, अब नाम हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया,
तो स्पेशली हायरार्की होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द हायरार्की वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म. सो वी use the method to classify the organism. So which are the methods? So जब नेमिंग हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, देन नेक्स्ट नंबर आता है किसका? द थर्ड वी फॉलो क्लासिफिकेशन. वी ऑल नो, हम घर में हैं, क्लासिफिकेशन इज एवरीवेयर. आप बुक स्टॉल में जाएंगे तो बुक्स की जो सिस्टम होगी उसकी तरह से उसको क्या किया गया होता है? क्लासिफाई किया गया होता है कि भाई यहाँ पर लिटरेचर बुक्स मिलेगी, यहाँ पर गुजराती लिटरेचर होगा, यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर हो गया, और या तो ABCD वाइज, और उसमें भी क्लासिफिकेशन होगा कि ABCD वाइज ऑथर नेम या तो मतलब जो बुक टाइटल है वो ABCD वाइज होता है, और कंप्यूटर में भी डेटा होता है. तो लेट्स वी अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस. ओके, दैट वे वी क्लासिफाई दैट. द क्लासिफिकेशन इज मेथड or process by which the organism can grouped, categorized, in a taxonomical or based on हायरार्की. तो हायरार्की मतलब जैसे सिस्टम है, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि आप लाइब्रेरी में जाते हो तो व्हाइल यू आर मूविंग टू द लाइब्रेरी देयर आर द रैक्स टू बी प्लेस, द बुक्स टू बी ऑल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ऑथर्स, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट. ओके, एंड ऑल्सो द बुक कैन बी सेपरेटेड बाय द अल्फाबेटिकली. आपके रोल नंबर्स भी ऐसे होते हैं, आपके नेम्स अल्फाबेटिकली आपका सीरीज जाता है. तो दिस इज द ग्रुपिंग. बट यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशल हायरार्की होती है, स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम क्या करते हैं? वी कैन क्लासीफाई द ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. एंड द फर्स्ट, द ईच कैटेगरी, जो कैटेगरी उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सा. फॉर एग्जाम्पल यू फाइंड द डॉग, देन यू ऑलवेज बीन सी दिस इज डॉग ओनली, उसको आप कैट तो नहीं कहेंगे. फिर आप जैसे जाते हैं तो भाई इसको कौवा को कौवा कहते हैं, क्रॉव. कोयल को आप कहते हैं कोयल. वाई? तो ये कोयल है, कौवा है, तो एक क्या हो गया? टैक्सा हो गया, एक स्टेप हो गया. एंड ईच रिफर एज अ टैक्सॉन. उसके थ्रू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड. उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उसको ग्रुप किया जाता है, और फिर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स लेवल के थ्रू, हायर के थ्रू उसको क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है. सो दिस इज मेथड टू एडप्टेड फॉर नेमिंग एंड फॉर क्लासिफिकेशन. सो हाउ हायरार्की वी कैन बी अंडरस्टैंड इन अवर नेक्स्ट lecture. I am stopping up till now. You can go through it. Then in lecture number 1.3 we can move to the hierarchies of classification. And lecture 1.4 is the last lecture where the taxonomical aids we are studies. कि हम कैसे पढ़ सकते हैं टैक्सोनॉमिकल ऑर्गेनिज्म को, कैसे स्टडी कर सकते हैं, वो लेक्चर नंबर 1.4 में आएगा. सो वॉट एवर द थिंग्स इन दैट इज इन गिवन इन बुक, वेरी इजी. बुक जो लेवल है वो अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर जाओ, और जब भी आप कोई भी नोट्स वगैरह बना रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तब मैं जब साइड में जाता हूँ तो उसका स्नैप ले लो, तो इजीली आपको दिखेगा, आप जूम कर सकते हो. ओके, एंड एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन कम टू द स्कूल. So wish you very warm and very good day to all. Thank you to all the students.